تو ہمیں نا میلاد کی تیاریاں سٹارٹ کر دی ہیں. آپ سب کے اتنے کمنٹس آ رہے تھے میلاد کب کروانا ہے, نئے گھر آئے ہوئے بھی اتنے دن ہو گئے ہیں. میں نے کولڈ ڈرنک اٹھائی, جیسے ہم بیٹھے لا کے کھانا کھانے کی تیاری, ہم نے کھولا جتنے لوگ کے کپڑے گندے کہتے ہیں سیٹنگ وغیرہ صفائی وغیرہ وہ کر رہے ہیں. تو یہ سامان جو ہے نا یہ سارا میرے کمرے میں پڑا تھا, اس کی بھی سیٹنگ ہونے والی ہے. آج جو ہے نا آ سارا سامان دے دے کباڑیے لوں بھی نہ نیر نہ گزر گیا اور نہ اب نہ بارش آ رہی ہے. نیچے دکان میں ہندی پہ سارے بورے نے ویڑے چھوڑ کے ادھر کے اندر نہیں نہ باہر نہ طوفان آ رہا. آپ دیکھ سکتے ہیں نہ گھر کے سامنے اور نہ کھانے والی چیز پر نہ دل. یہ واضح بہت زیادہ کرتی کیونکہ جب بھی میں نے اس کو چلانا رات کو نا وہ صحیح کر دیا. سبزی لگی تو ہم لگا سبزی کے نہ رکھے سیپنے دیر چل رہی ہوں سارے گھر ملا دے تو میں نواں سوٹ سلنا کی بوتل منگائی ہے. نہ بارش ہو رہی, اتنی تیز بارش, اتنی تیز بارش. تو پھر ہم لوگ آج لمبے راستے سے آئے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہو گئے. تو ابھی نا صبح کے ماشاءاللہ سے 7 بج رہے ہیں, تو ہم لوگ کافی جلدی اٹھ جاتے ہیں. آج کل ہم لوگ ساری فیملی یہاں پہ سو رہے ہوتے ہیں, تو جیسے ہی دھوپ نکلتی ہے تو یہاں پہ لیٹنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم لوگ سارے مل کے بہن بھائی آپس میں چار پائیاں وغیرہ بھی اندر ڈال دیتے, بستر وغیرہ سارے اٹھا کے امی کے ساتھ کھانا بھی صبح بنوا کے جاتی ہوں میں, کیونکہ ابھی تو آپ ہی ہے, کچھ دنوں تک اس نے چلے جانا ہے. تو پھر امی بیچاری کے لیے مشکل ہوگا, اس لیے میں نے شروع سے پریکٹس کر لی ہے کہ جب تک وہ جائے گی تب تک مجھے اچھے سے پریکٹس ہو جائے گی روٹیاں بنانے کی امی کے ساتھ. تو تندوری بھی میں نے اٹھتے ہی صبح صبح جلا دی, وہ بھی تقریباً جل گئی ہے. تو یہ ٹائل کی وجہ سے ماشاءاللہ سین بھی ہمارا اتنا اچھا لگ رہا ہے نا. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کے اوپر سیمنٹ مارتے, پتھر یہ وہ, تو ہم لوگ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پتھر لگائیں گے فیوچر میں, میرے بھائی ضرور لگائیں گے, لیکن وہ صرف ہم کمروں میں لگائیں گے. سین میں ہم نے ٹف ٹائل ہی رہنے دینی ہے کیونکہ یہ بہت اچھی لگ رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ کا شکر ہے جتنا ادا کرے کم ہے, کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ہی پیارا گھر دیا ہے. تو ابھی ناشتہ کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آفس چلتے ہیں. تو پہلے اس سے پہلے امی سے جا کے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو کیا کر رہے ہیں امی جی؟ میں نا پیڑے بنا دی پئی تو میری تپتی پئی ہے. ہاں جی تے دوسرا نا ساڈے گھر نا میں نا کنے لوکاں دے کمنٹ بھی پڑھنے آندے نے کہ تواڈے نا گھر دی جگہ خالی کیس دی ہے. تے ایک اور میں کمنٹ بنایا سانو اینی ایکسائٹنگ ہے تہاڈا نا گارڈن بنے ہیں, کیونکہ نا ساری جگہ سیمنٹ. تو اس تو علاوہ نا میری نا کل نا تمہیں پتہ آنٹی آئی تے نا وہ آندے نے تہاڈا گھر اتنا ٹھنڈا ہے, بندہ جتھے مرضی ہوئے پکا چلا کے جویں اے سی ہے. لیکن نواں گھر بنیا نا اندے تے پلستر ہویا تے پانی بہت زیادہ لگا ہے, تے اس طرح ہی لگا جس طرح اے سی لگا ہے نا امی جان, تو گرمی لگ. ابھی میں نے صبح برتن دھو کے آئی ہوں, کیونکہ آنٹی جو ہے نا وہ رات کو نہیں آئی. تو رات کے بھی برتن ویسے میں نہیں دھوئے تھے, لیکن یہ تھا کہ وہ آ جائیں گی, کہ مطلب جو ہم نے بعد میں کھانا وغیرہ کھایا, لیکن وہ نہیں آئی. تو ابھی جو امی کو ضرورت تھی نا وہ سارے برتن جو ہے نا وہ امی تقریباً دھو لی ہیں. اب امی کو وہاں بھی چیزیں بھی میں نے رکھ کے دے دی ہیں, تو ابھی امی کو پکڑا دیتی ہوں برتن. تو وہ جو ہے نا وہ چائے وغیرہ بناتی ہے, تو تب تک میں تندوری جو ہے نا وہ جلا لیتی ہوں. ہم نے نا کل ہمارا بجلی کا بھی تھوڑا سا کام رہتا تھا, تو بھائی یاسین کو منگوایا ہوا تھا, تو ہم نے اس کے ساتھ نا ایک اپنی موٹر کی تھوڑی سی ریپیئرنگ کرائی ہے, پھر اس مشین کی ریپیئرنگ کروائی ہے. مشین تو ہماری بالکل نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ واضح بہت زیادہ کرتی, کیونکہ جب بھی میں نے اس کو چلانا اگر کوئی سو رہا ہے نا تو اس کا سونا یہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے, اتنی آواز کرتی. رات کو نا وہ صحیح کر دیا. پہلے تو اس کی آوازیں بہت ہی زیادہ ڈراتی تھی, تو میں نے کہا اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ صفائیاں وغیرہ کر کے نا اسٹارٹ کریں گے. تو یہ بھی اچھا ہوا کہ بھائی ہیں گاؤں میں, ان کو سارے کام آتے ہیں. تو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے بجلی کا تو ہم بھائی یاسین سے کرواتے ہیں. ہمارے پورے گھر کی ریپیئرنگ وغیرہ سارا کچھ انہوں نے کیا. تو یہ مشین اٹھاؤ تے نا ساری رات نا باہر مشین پئی دی ہے ترے تے, تو ہن نا دھوپ نکلنا سارا دن نا دھوپ رہنی, تے میں نا مشین نوں جا کے نا اندر رکھ دینا کہ دھوپ تے نا خراب نہ ہو جاوے سٹیل دی. یہ مشین جو ہے نا ایسن سے یہاں رکھوا لی ہے. تو بیسیکلی اس کو یہاں پہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس کو ہال میں رکھا ہوا ہے, تو آپ گھر کی کوئی سیٹنگ ہی نہیں کرتے, آپ نے عجیب جگہ جگہ پہ چیزیں کھلانی ہوئی ہیں. تو یہ مشین ہم لوگ ادھر کچن میں ہی رکھیں گے, یہ باہر والا کچن ہے. ابھی اس کو دروازہ بھی لگ جانا, اس کا دروازہ میں لا کے رکھا ہوا, بس لگانے والا ہے. تو اللہ نے چاہا 2 دنوں تک دروازہ بھی لگ جائے گا. تو یہ پراپر ہم لوگ نا یہاں پہ اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ اس کو رکھ کے آگے سے دروازہ کرے گا. یہ جلدی اور دوسرا یہ کہ ہم اس کے ہاتھ میں لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ابھی میں نے پرسوں کپڑے دھوئے ہیں, اور 2 دن ہی ہوئے ہیں. اور یہ اتنے کپڑے جو آپ کو
ये सारे इधर पड़े नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे उन्होंने 2 दिनों में कर लेते हैं। पता नहीं, मैं कहती हूँ इतने कपड़े गंदे काम कैसे लेते हैं, बहुत कपड़े हमारे घर में गंदे होते हैं। तो मैंने कहा चलो सारे इसमें रखती हूँ और जल्दी जल्दी करते हैं कि काम बहुत सारे हैं और टाइम बहुत थोड़ा रह गया। अभी हम लोग अपने घर की जो फाइनल हमारी है ना सेटिंग्स वगैरह सफाई वगैरह वो कर रहे हैं। तो ये सामान जो है ना ये सारा मेरे कमरे में पड़ा था, अब उसकी भी सेटिंग होने वाली है। तो ये हम लोग सारा उठा के बाहर लेके जा रहे हैं, इसमें से जो यूजफुल है वो हम रख देंगे, बाकी जो सारा है ना वो कबाड़ी को दे देंगे। तो अभी मैं घर पे थी तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। सामान तो इतना दूसरा महंगा है तो उन्होंने खुद ही कहा था, कहते हैं कि बाजी तुसी सानू समान की कमी नहीं की, लेकिन ये अल्लाह का करम ही है, वरना हमारे बस में क्या ही होता है, अल्लाह पाक ना चाहे तो। रखो रखो इधर, ले आओ। जो इसमें यूजफुल है ना वो गैलरी पे रखना, ठीक है चीजें, तो पेंट कभी भी खराब नहीं होता। तो दूसरा ना ये सारा सामान है ना, तो बाल कल ना कोई आया हमारे घर, वो कह रहा मैं ना ये सामान तुम्हारा रंग वाला फ्री होगा तो हमें दे दो। मैंने कहा अभी फ्री हुआ ही नहीं, जितना हमारा काम है ये तभी भी थोड़ा है कि नहीं। अभी उन्होंने पेंट बनाना था, हम कहाँ से लेकर आएंगे इतनी बाल्टी। जो खाली है उसके साइड पे कर देते हैं, काम का ये सारी बोतलें जो है ये भी तुम्हारी को देंगे हमारे काम के। वो थिनर है बच्चे, वो बहुत महंगा है, वो उधर रख दो थिनर, ये काम की चीज है। फिर वापस डाल देना। हाँ तो ठीक है वापस ले जाओ ना। ये थिनर है, मट्टी का तेल है, मट्टी का तेल 700 रुपए लीटर है। हाँ तो हमने क्या करना है इसको रख के, ये लीटर से ज्यादा है, ये थिनर भी 1.5 लीटर है, 2000 की ये चीजें दोनों। हाँ ये सारा ये खाली है सारा सामान, इनमें बाल्टियों में देखो इसमें है, इसको साइड पे रख दो। इसमें देखो तो ये इतना ज्यादा है तो ये वापस क्यों नहीं किया, ये ऐसे नहीं वापस होता। इसमें देखो क्या है, ये भी खाली है मेरे ख्याल, खाली है ना, नहीं है इसमें। ये ब्रश उन्होंने भिगो के इसमें रखा हुआ है ताकि ब्रश जमा न जाए। ये भी रखो भाई, हाँ ना ये सारा कबाड़ में डालो, गंद बन गया है। ये देखो ना, अब इसको अंदर कमरों में रखने का क्या तुक बनता है, इसमें भी सारा कबाड़ ही है। आप भी देखते सारा आप लोगों को मस्त रखो ला गया सारा कुछ पाओ तो देखो। ये पटीन है, वापस हो जाएगी ये, नहीं ये सॉरी वाइट सीमेंट है। ये भी ऐसे ऐसे पकड़ रही हो, ये गिर सकता है ना। ये पटीन है, प्लास्टर सारियां बोरीज पाओ तो सारी आ भी ग्लू है, नहीं ना लांदे नहीं सारे कुछ। आप निकाल सकना आज है ना, आ सारा सामान दे दे कबाड़िए नु इनको, हाँ ऐसे गैलरी पे रख दो। ये येलो बॉटल भी इसमें रख दो, ये येलो बॉटल। हाँ सारा काम तो वो ब्रश जो साफ ब्रश है ना, ये कलर करना है ग्रिल को। हाँ है ये सारा आरामत सामान था थोड़ा सा जो मैंने निकाल लिया। ये सारा ये कबाड़ी का सामान तीन कबाड़ी अभी सुबह का टाइम है, मैं गया हुआ था ना पाथियाँ लेने के लिए, हमारे गांव से ना मिल जाती हैं। तो ना पिछली बार ऐसा हुआ कि ना जब बारिश थी ना तब पाथियाँ मिल नहीं रही थी। उन्होंने कहा इस बार जितनी आपको पाथियाँ चाहिए ना मिल सकेंगी, 1000 की 5000 तक मिल जाएंगी। तो एक ये मिलती है 7 रुपए की, तो ना आप ही तंदूरी जला लो। हाँ ठीक है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, आज मैं अपना बड़ा पैरागॉन पहन के जाऊँगी। और दूसरा ये कि ऐसे टाइम से आना आज हम। अभी ना बाहर आया था सब्जी वाला, तो सब्जी वाले से ना मुझे लगता है अम्मी जान ने ना पूरे हफ्ते की ना सब्जी ले ली है। बैंगन हो गया, आलू हो गए, दिखाओ ना भाई से सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन ना मिली हैं 500 रुपए की। तो सब्जी ऐसी होगी जैसे पेट्रोल से भी ज़्यादा। सारी नीचे गिराई जा रहे हो, वो शापर फट गया है।
तो मैं ना सारी चीजें अपने ना झोली में डाल लेता हूँ और इन्हें ना फ्रिज में रखता हूँ। और अपनी गाँव वाली आंटी को कहते हैं कि इसे ना वॉश करके ना फ्रिज में रखो। तो ये सब्जी है ना ऐसे वॉश करके ना पकाना चाहिए, पहले इस नलके में लेकर के। मैं सब्जी ले आई हूँ, सारा बोला इसका नवे आने का भी लेके आऊँगा कि सब्जी दे जाएगी। तो मैं उसको तो कुछ सब्जी ले ली, तो हम लगा सब्जी में से काट के ना रखूँगा। मैं क्या शाम कर मैं सब्जी रखूँगा। सीपने देर ਚੱਲੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਸਿਉਣਾ ਲੈ 100 ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਆਏ ਹੈ ਉਹਲੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਕੂਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਨਾ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਕੱਢਣ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। तो मैं जाने अम्मी आप कपड़े तो ले लो। तो मैं अभी ना गया था शॉप पर, जैसा कि आपको पता है हमारे घर ना मेहमान आए हैं तो ना उनके लिए ना दोपहर का टाइम को बिस्कुट टाफियाँ और ना एक ना नील दी पुड़ी लेके आए हैं। मेहमानों के लिए नील की पुड़ी। अभी मुझे ना आधा घंटा है बाहर ना रुके हैं हमारी मेरी बहनों। हाँ जी, तो मेरी अम्मी जान ना आधा घंटा हो गया मैं इधर ही रुका हूँ। अम्मी कितनी धूप है, आप बाहर देख सकते हैं। आज धूप भी ऐसे जैसे सीधी पड़ रही है जैसे ना अम्मी। बड़ी गर्मी चले सावन है ना। चले हाँ चली मुझे ये गल है हवा बड़ी ठंडी आंदी पई पर ना गर्मी बहुत है। चले ਇਹ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ हाँ जी। ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾ। मैं ना साथ वाले गांव में जा रहा हूँ, इतना ठंडा मौसम है ना आपको कहता है जैसे ना बारिश होने लगी है। कभी हो भी जाए ना पूरा महीना हो रहा है, कभी आ रही है कभी जा रही है। रास्ता हमारा ना ये थोड़ा सा रह गया और ना सारा रास्ता हमारे गांव का ना यूँ बना है जो मैं पीछे से आया ना ये थोड़ा सा रह गया। तो अभी मैं ना गया था साथ वाले गाँव ना काम था, इधर से मैंने ना कलिया नाल ना एक की बोतल मंगाई है। मैं कहा भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, घर खाना शायद हो ना मैं कहती खा के जाइए। बहुत ही ना मजेदार, गर्मी भी बहुत है। साग में मंगाई है स्प्रिंग की बोतल है। तो अभी हम ना बाहर निकले, दोपहर का टाइम है, अंदर ना रेस्ट कर रहे थे। बाहर देखा तो कितने ना बादल आ गए और ना तूफान आ रहा है। तो मैंने ना ये जंगला ना हिल रहा है, इसे ना सेट करवाया था, इसे भी अच्छे तरीके के साथ ना लिटा देना इन्होंने ना ये ना क्या बनने ये चोटी ना जाए। जंगले दे चारों तरफ ना एक एक रखने दोस्त अलावा आज इतना लगना पड़ी सकियां चीज़ा बालन भी सारा चाह के ना अंदर ने बारिश आ गई तो भेज जाना। बालन साढ़े को इस गारे मुकदा क्योंकि तुहानू पता साढ़े पुराने गारे को 20-25 ते 13 ना लिख गया था। या सारियां ना साड़ियां छादियां लकड़ी ने जड़ी हाल तक इस्तेमाल हो रही महीना डेढ़ तो उत्ते हो गया। ये ना सारियां चीज़ां ना अंदर लै जाने पेंट वाले ना साढ़े घर लगे हुए सी ते आ ना थिनर है ते आ ना रंग वाली बाल्टी है हना ना इन्हें सब ने कूड़े वाले तो मैं ना आपे जरी लवन जाना जरा थिनर ना सानू कोई इस्तेमाल है नहीं। तो 700-800 रुपये ना लीटर है तो लीटर ना ज़्यादा भी वापस करांगे। मिट्टी का भी तेल साढ़े घर पे है तो दूसरा पेट्रोल भी 4 चीज़ां पईयां साढ़े घर इन्नियां ज़्यादा इस्तेमाल है सन इन्हों ना अंदर ले ना इतना ज़्यादा ना बाहर ना तूफान और आप देख सकते हैं ना घर के सामने और ना खाने वाली चीज़ पर ना दिल किया। और भाई भी कह रहे हैं कि वो चीज़ चाहिए ना खराब हो जानी घट्टा ही बहुत दिखा ना बाजारा जैसे जैसे पता नहीं मिट्टी दे बाब चलते हैं। अनस मेरी सलाम आ चलिए घर है ज्यादा ना आंधी और ना तूफान आ रहा। मैंने कहा बाहर दरवाजे पर कौन है सलाम अलैकुम किधर से आ रहे तो अपने हालात देखो मिट्टी में तुम्हें 2 मिनट सुकून नहीं आया। नहीं मैंने कहा जाना ही जाना। चलो भाई अनस भी मारा भाई अंदर आ जाए जल्दी करो हर चीज के साथ तबाह हो गए। अभी ना नेर ना गुजर गया और ना अब ना बारिश आ रही है नीचे दिखाने के में नंदी पई है जेड़े सारे बोरे ने वेड़े छोड़ के कदी इधर जांदे के नहीं तो ना असि सुबह आके भी बानी है सारे ले जाके ना अंदर ले जाने हैं वो भी पड़े। हाँ वो भी ऑटोमेटिक चीज़ां जा रही हैं ते ना अद्धियां रह गई तो बारिश में पहले लगा सिर्फ ना नेरी आवेगी तो ना बारिश भी आने लग पई है ठंडी कारण। आज मैंने एहसन को कहा था, मैंने कहा तुम ना आना, बारिश हो रही, इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश। तो फिर हम लोग आज लंबे रास्ते से आए हैं और थोड़ा सा सामान वगैरह लेना था वो लेके आई हैं। तो मेरे से उठाया नहीं जा रहा था तो मैंने एहसन को बुला लिया। तब हम दोनों बहन भाई इकट्ठे जाते हैं।
पे आपे ले आए हो? हाँ ये सामान तो ये ना आज मैं आई थी चाचू के साथ पीछे से, तो ये अभी ना ऐसन को मैंने बुलाया था, हम लोग वहाँ से ना अपने गांव के मुखर से इकट्ठे आए हैं। तो आज चाचू के साथ मैं पीछे से आई थी, हम लोगों ने कुछ सामान लेना था, वो तो नहीं लेके आए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक मैंने कहा था कि चलो मैं ले जाती हूँ। तो रास्ते में गिर गए, इतने बुरे तरीके से गिरे हैं। वो ना रास्ते में ये जैसे यहाँ पे है ना, ऐसे ही वहाँ पे कीचड़ सा इकट्ठा था। तो चाचू ने ना जैसे ही बाइक को हम लोग कच्ची सड़क पे आए ना, तो इतनी बुरे तरीके से मैं गिरी हूँ ना कि बोतलें भी सारी ऐसी जमीन पे चली गई, मुझे चोट भी लग गई। तो फिर चाचू का अल्लाह भला करे, उन्होंने अपने आगे रख ली। तो मैंने फ़ोन रास्ते में कर दिया, तो मैंने कहा ऐसे को भेज देना। तो और मौसम ख़राब था इस वजह से, और बारिश भी रास्ते में हुई थी, इसलिए मैंने कहा वो तो रोज़ ही। तो हमें ना मिलाद की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। आप सबके इतने कमेंट्स आ रहे थे मिलाद कब करवाना है, नए घर आए हुए भी इतने दिन हो गए हैं, कुछ आप मिलाद तो करवा ही नहीं रहे हो। तो आपको पता है काम स्टिल छोटे मोटे चल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा घर ही और ऐसा नहीं डेली जाते हैं, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके भी लेके आओगे तो चलो सामान 2-3 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर। तो इसलिए आज भी कोल्ड ड्रिंक्स लेके आ गए हैं, कल कुछ और सामान मंगवा लूँगी। तो ये कितने के 2 पैक मिले? ये पैक मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने सामान और भी लिया था तो बिल एक साथ ही हो गया। लेकिन ये कि अभी ये कोल्ड ड्रिंक कम है, अभी और भी लेके आएंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि सारी इकट्ठी उठाना मुश्किल है, तो थोड़ी आज आ गई, थोड़ी कल आ जाएंगी। तो इसको देख के ना मुझे एक और चीज़ याद आई। आपको पता है हमारे ना कश्मीर वाले घर में ना ये वहाँ पे एक ट्रेडिशन है। पहली बात तो यहाँ भी किसी घर खाली नहीं जाते, लेकिन वहाँ भी मैंने देखा लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेके जाते हैं। मोस्टली कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट और मिठाई, ऐसी चीज़ें जो आप रख सकते हैं और कोई गेस्ट आए तो फ़ौरन यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह ना जिस दिन हमने इफ्तार करवाया ना, तो इतने मेहमान आए, तो ना एक आंटी आई, उनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी ऐसे ना शॉपर में, वो मुझे पकड़ाने लगी, शॉपर के नीचे से फटा कोल्ड ड्रिंक ऐसे ऐसे नीचे पुश हुई। ठीक है, मुझे याद है वो कोल्ड ड्रिंक मैंने कहाँ पे रखी थी, अंदर। हमने काफ़ी, फिर हम अपने लिए भी लाते रहते हैं ना, घर के लिए भी, जब हम कहीं जाना होता है तो फिर घर से उठाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि शॉप से नहीं पास होती, तो हम भी ले जाते हैं। तो बाद में ना जब जिस दिन कि हम खाना खा रहे बैठ के मैं गई, मुझे याद था मैंने वो कोल्ड ड्रिंक कहाँ पे रखी, बाकी कोल्ड ड्रिंक्स के साथ दीवार के साथ मैंने वो कोल्ड ड्रिंक उठाई। जैसे हम बैठे ला के खाना खाने के बाद हमने खोला, जितने लोग आस पास बैठे सब के कपड़े गंदे, कहते ये क्या हो गया। मैंने फिर मुझे याद है, मैंने कहा ये वो वही कोल्ड ड्रिंक है जो रोड से ज़मीन पे लगी थी, क्योंकि इसमें प्रेशर होता है। तो ये अगर ऐसे अभी भी ज़मीन पे गिरे खोलते ही सारी बाहर, हाँ, तो इतना वो सारा ऐसे हो गया। तो चलो अच्छा किया। और वैसे भी अब एक ही चीज़ ये कि गांव की चीज़ें महंगी मिलती हैं और कभी कभी तो मिलती भी नहीं है। तो अचानक हमारे तो मेहमान आ जाता है या हमारे अभी काम भी घर पे हो रहा है, तो हमें कोल्ड ड्रिंक की जरूरत पड़ती रहती है। हाँ। तो हमने ये सोचा है कि अपने घर पे अब राशन में ये भी चीज़ ऐड करेंगे। तो ये है कि जब भी ज़रूरत होगी जो चीज़ घर पे मौजूद होगी, सब्जियों के अलावा मैं बाकी सारा सामान हमने तो ला दूँगी। चलो ठीक है, अभी ऐसा इसको उठाओ शाबाश, और इसको ना उधर रख के ऐसा करो, वहाँ पे ना एक बॉक्स बनाएंगे, अभी मैं किचन सेट करूँगी ना, उसके अंदर सारा राशन रखा, एक मतलब कैबिन रखेंगे जिसमें सिर्फ, और उसमें वो गत्ते वाले डब्बे हों, उनके अंदर दालें शालें ऐसी चीज़ें पड़ी होंगी, वो सही सेफ रहेगा। इसको भी वही रखवाती हूँ। ऐसा खाओ आप। वालेकुम अस्सलाम। किधर है? किधर रहा नहीं, ग्राउंड पे गया था। अच्छा सिस्टम ग्राउंड पे गेम बल्ला खेलने से अच्छा। रास्ते में क्या बर्फ ही लेने। तो ना असद को ना क्रिकेट का शौक है, तो जो हाशिम है ना मेरा छोटा भाई, उसे ना है कबड्डी का शौक है असद। हाँ जी। तो इन्ने ही खेल सारे कपड़े नुचड़ते पे नहा के अबस बहुत है ना से गेम केड़ी खेल रहे हो? क्रिकेट है। क्रिकेट हार्ड बॉल के दूसरी टेंस बॉल खेलने, हार्ड बॉल नहीं खेलने। ये कितने की मिली? ये 100 फीस में मिली। चलो अच्छा करते। तो आज काफ़ी ज़्यादा आंधी वगैरह आई हुई थी, तो मैं थोड़ी देर पहले वापस आई हूँ। अभी मैंने ना तंदूरी चलाई है, और इस टाइम आप कहेंगे कि क्यों चलाई हुई है, तो असल में ये है कि आज मौसम ख़राब था, ये देखो ना काफ़ी सारे बादल बारिश पता नहीं क्या क्या होता रहा। तो हमने तंदूर पे आटा भेजा, तो अभी जब ऐसे तो लगवाने गया तो पता चला तंदूर जला ही कोई नहीं है। फिर वो आटा उठा के वापस लेके आया, तो जल्दी जल्दी ये देखिए यहाँ पे तंदूरी बिल्कुल मेरी जल गई है। तो अम्मी जी पेड़े बना रही हैं, जब वो बनाएंगी फिर उनके साथ रोटियाँ लगवाएंगे। तो शाम को भी हम लोग, हमसे तवे में पूरी गर्मियों में रोटियाँ नहीं खाई जाती, हमने सुबह भी तंदूर की और शाम को, दोपहर को तो हम वैसे नहीं बनाते क्योंकि हमारा गैस नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब गैस भी आ जाएगा तो फिर ताज़ा बना लेंगे। वरना ऐसे करते हैं कि हम सुबह ही शाम को भी बना के रख देते हैं, तो वही फिर दोपहर को खा लेते हैं, सुबह को दोपहर का बना के रखते हैं। तो यहाँ पे तंदूरी मेरी जल चुकी है, अब अम्मी को बुलाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर रोटियाँ बनाते हैं। और इतनी लेट हो जाता है, हालांकि हम अपनी तरफ से इतनी कोशिश करते हैं कि जल्दी करें, लेकिन हमें फिर भी लेट हो जाता है, पता नहीं कैसे ही लेट हो जाता है। और वैसे भी आजकल टाइम पता नहीं बहुत जल्दी गुजरता है। हालांकि कहते थे कि गर्मियों की जो दिन है बहुत लंबे होते हैं, बेशक दिन लंबे होते हैं लेकिन रात को कोई पता नहीं चलता, नींद तक पूरी नहीं होती, रात खत्म हो जाती है। फिर चलो मैं अम्मी को लेके आती हूँ यहाँ पे। टाइम हो गया, आलू गोभी का सालन में बहुत ही मज़े का, और साथ में रोटी है तंदूर की, और मुझे तो आज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है।
تو میری پیاری یوٹیوب فیملی آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد کریے گا. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں, ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. اب ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.